सो यस, कल हमने बात करी थी न्यूज की, एडवर्टाइजिंग की, पीआर की, पर आज हम बात करेंगे आवाज की दुनिया के बारे में। एंड आज के लिए मैं हूं आपकी एंकर हिताक्षी बच्चानी, योर सीनियर परस्यूइंग BA second year student, and it is my pleasure to welcome you all to this exciting guest lecture. First and foremost, welcome to Bennett University, everyone. I congratulate you all because you have officially survived the application process, and we all know how rigorous that it is. So I finally welcome you on board to the TSOM family. So first of all, are you all ready to add some spice and sizzle to your morning? Yes. Good, because I hope you all are energized because things are going to get quite electrifying today. Because we are honored to have with us RJ Sid and Miss Parul Maheshwari ma'am from Radio Mirchi. May I now request Sanjeev Ratna Singh, the Dean of TSOM, to facilitate the sapling of gratitude. So now I have a situation for all of you. Imagine this. You are stuck in Delhi traffic, yawning through your morning routine, when suddenly a voice blasts through your car radio. This voice isn't just any voice. It is the voice that makes even the traffic jams look like a party. So ladies and gentlemen, hold on to your seats because we have with us the ultimate morning magician, the one who turns groovy into groovy, the master of masti, RJ Sid from Radio Mirchi. Known for his quirky characters like Jack Uncle and Mayus Mishra, and his ability to make even the sleepiest deletes crack a smile, RJ Sid is here to make this guest lecture even more exciting. तो दोस्तों, बिना किसी देरी के जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए the man who makes the mornings magical, the Sultan of silliness and the Raja of radio, RJ Sid. मैं जा रहा हूँ, सब झूठ है, सब झूठ. Thank you so much, means a lot. क्या लग रहा है हाया? भाई क्या कर रहे हो? फर्स्ट ईयर में मैं हाथ नहीं आ रहा था डीन के. तुम लोग बैठे कैसे हो इतनी शांतली? कैसे? हाँ मेरे को पता है मैं नहीं आता इनके हाथ में, नहीं आता मैं. But thank you guys, and it's lovely. I think give it up for yourself first. So हाया तो मेरे को मिला नहीं बहुत जोर का. नहीं मिलेगा? ऐसे कैसे? नहीं मिलेगा? Alright. तो क्यों है हम लोग यहाँ पे आज? Anybody? Why we here? Why you guys here? Sir आप. So are you oriented in the right direction? You feel? Yes, sir, almost. And what do you want to do in life? Sir, I want to pursue mass communication PR. नहीं करना क्या है? ये सब तो जरिए हैं. सर पैसे कमाने हैं. पैसे कमाने हैं. Yes, sir. Cool. Okay. So I was told कि यार देखो पैसे तो नहीं कमा सकता मैं खुद नहीं कमाता. अगर लाइफ में मस्ती करनी है और काम को मस्ती बना देना है और इस एंजॉयमेंट के थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं तो ये बहुत सही फील्ड चुनी है आप लोगों ने. चाहे आप एक टीवी एंकर बने, चाहे आप रेडियो एंकर बने, चाहे आप ये सब करने के बाद एक सिंगर बन जाए. बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सही डायरेक्शन में कदम जो है वो दे दें, है कि नहीं? एंड आई रियली विश कि आप लोगों ने सही डायरेक्शन में कदम लिया हो, क्योंकि मैं बहुत धक्के खाने के बाद मुझे किसी ने बनाया है रेडियो. मैं तो पता नहीं क्या बनने वाला था. कॉलेज ड्रॉप आउट में बोल सकते हैं, बोल सकते हैं. कॉलेज में छोड़ दिया. इंजीनियरिंग करने में बॉम्बे गया था तो वहाँ से कॉलेज छोड़ के मैंने नौकरी कर ली. नौकरी करके पैसे कमाए, बोर हो गया. म्यूजिक से प्यार करता था, साउंड इंजीनियरिंग करी. साउंड इंजीनियरिंग करने के बाद एक ऐसी एकेडमी में जाके साउंड सिखा रहा था बच्चों को, जहाँ के बच्चों को आरजे बनना था. वहाँ जो आदमी सिखाने आता था बच्चों को, आरजे बनाने आता था, उसने बोला तू आरजे है. तो मैंने बोला अच्छा ऐसे घूम के पहुंचूंगा मैं डेस्टिनी की तरफ. बट दे आर दुरुस्त. आई फील आई एम द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड आई होप कि दिस इज द राइट टाइम कि आप अपनी जिंदगी की शुरुआत एक खूबसूरत नोट से करने हैं. नाउ क्या लग रहा है हाया? It's not there yet, but I'll still accept it, guys. So what is inner voice? How do we reach there?
Anybody? How do we hear that voice? Anyone? No? No? Any idea, ma'am? No? Should I come there with the mic? Yeah, I'm looking at you. Who will I ask them? So this is my inner. Is it my inner voice? This is hi. This is Jack Gandotra. I'm 1,000 years old. I don't know, but I use this voice a lot in my show to say things that I as Sid can't say. कुछ ऐसी obnoxious चीजें भी हमें रेडियो पे कहनी होती हैं जो लोग सुनेंगे बोलेंगे हो क्या कह रहा है. जब एक बुजुर्ग कहता है तो बोलते हैं पागल है, तो वो चल जाती हैं. So that can be one. To really rile you guys up and to throw some energy into you. I see very ऐसे मुझे लगता है कि तुम लोगों को उठाना बहुत जरूरी है अभी. पारुल, can we have that thing going on? Yeah, sure. Please यार. कब से बैठे हो ऐसे आप? आधा घंटे से बैठे हो. आधा घंटा हो गया. Yeah, absolutely. I want to do that too. चला. तो आधे घंटे से जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, आई वुड जस्ट अर्ज यू ऑल टू कैन यू जस्ट गेट अप या अपने शरीर को ढीला छोड़ दें. शरीर को ढीला कैसे छोड़ते हैं ये आपको अभी सिर्फ बताएंगे. तो सब सिर्फ की तरफ देखें कि कैसे छोड़ना है शरीर को ढीला. लाइक दैट, जस्ट लटक जाइए ग्रेविटी की तरफ. ओके एंड अब मैं आपसे एक ऐसी कुछ अजीब अतरंगी सी हरकत कराने वाली हूँ. सो पार्डन मी फॉर दैट, बट आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम पारुल है और मैं रेडियो मिर्ची में काम करती हूँ पिछले 2.5 साल से. और अभी आजकल मैं सिड के साथ मॉर्निंग शो पर आई एम द प्रोड्यूसर. सो सिड जो भी बोलते रहते हैं, जैसे कि अभी आपको मज़ा आया सुनने में, वैसे मैं बस बैठ के सुनती रहती हूँ क्या बोल रहे हैं और फिर कहीं कहीं रोक देती हूँ, ये नहीं बोलना है, वो मेरा काम है. सो आपने कभी ये ऐसे साउंड सुना है? ए आ ए ओ आ, ऐसा कुछ सुना है? सुना है? तुषार कपूर. ओके. और कहीं सुना है ये आ ए आ? सॉरी, क्या? जादू जादू कोई मिल गया. ओके, जादू. ओके, ठीक है. मेरे पास ना आ ए ओ और ओ ए आ के लिए कुछ एक्शंस हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब उसको रटेंगे और फिर उसके बाद जो मैं बोलूँगी आप वही करेंगे. ठीक? होल्ड ऑन. When I say A, you do this. Okay? A, O. ये क्या था? A. ये क्या था? O. Right. A, O. ठीक? A. That side. बोलना भी है. This is A, O. हाथ नीचे, ढीला छोड़ दो. ढीला छोड़ दिया. O. A, O, A. सब करो. Concentrate, guys. A कहाँ पे था? A, O, A, A. Okay, A. Some of you. A is here, sir. That is O. Okay, again. A, O, A, A. O. Sid is doing right. A, A. ठीक है, अब कुछ सही पकड़ने लगे हो आप, तो अब जाते हैं एक गूगली. अब आएगा ई कहाँ पे होगा? ऊपर. ठीक है, सो A, E, O, E, A, O, E, A, E, O. Thank you guys. You can sit. थोड़ी सी एनर्जी आई है, जितनी एनर्जी थी उतनी भी खींच ली मैंने. आगे. So, taking the mic for a while, say. Please, all yours. So, मुझे भी माइक से प्यार है. मैंने भी अपनी जर्नी एज एन आरजे शुरू करी थी, इसलिए माइक पकड़ती हूँ तो फिर थोड़ी देर के लिए पकड़ लेती हूँ. सो गाइस, इनर वॉइस की हम बात कर रहे हैं आज. और इनर वॉइस पता क्या होती है? आई वुड जस्ट लाइक सम ऑफ यू टू जस्ट गेट अप. जिसका भी मन करे खड़े होने का वापस से. आई थिंक यू
Yeah, you. Can someone just give him the mic? आपका नाम क्या है? रियांश, मुझे एक छोटी सी चीज बताओ यार, अब तक की आपकी लाइफ में कौन सी वो आवाज है जो आपको सबसे अच्छी लगी? वो कुछ भी हो सकती है आवाज। मम्मी की। हाँ, दैट्स क्यूट। और उसके अलावा कोई ऐसी आवाज जो आपको बहुत बुरी, आपको लगा हो यार ये नहीं सुननी है मुझे आवाज, वो कौन सी थी? एक्स की। Good one, good one. Thanks, yeah. Hashtag relatable. तो ऐसी ना बहुत सारी आवाज़ें हैं जो हमें सुनना पसंद होती हैं और सुनना नहीं पसंद होती हैं, और हम जब इस मीडियम में आ गए हैं तो हमारा ये काम है कि वो लोग जो हमें सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा सुने जिसको ये ना बोले कि ये तो मेरे एक्स जैसी आवाज़ है जो मुझे नहीं सुननी है। तो अपनी आवाज़ जो अंदर की आवाज़ होती है वो एक्चुअली क्या होती है? नॉट द नेचुरल आवाज़ें जो हमारे शरीर से निकलती हैं, अपार्ट फ्रॉम देम इनर वॉइस वो होती है जो बाहर की जितनी भी आवाज़ें चल रही हैं अभी अगर मैं आपको बोलूँगी कि पिन ड्रॉप साइलेंस करो तो हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे कि क्या क्या आवाज़ें सुनाई दे रही। कैन वी डू दिस फॉर 5 seconds? कैन वी हैव साइलेंस ऑन द फ्लोर? थैंक यू। मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ आपको क्या सुनाई दे रहा है, प्लीज सुनो एक बार। Maybe you can close your eyes and try to hear what you're listening. Yes, good morning. बताइए आप, the pink. क्या सुनाई दिया? कैमरा फ्लैश। कैमरा फ्लैश। और कोई बताना चाहेगा मुझे क्या सुनाई दिया? हाँ जी। ट्रेन की आवाज और बाहर किसी की जूते की ग्रिप की आवाज। Great, good concentration. और कोई बताना चाहता है? Very nice. Anybody from here? और क्या आवाजें आ रही थी? फोन नोटिफिकेशन। Okay. और कोई कुछ बताना चाहता है इन सब के अलावा? किसी को कुछ आवाज आई हो? People talking when the door open. Super. So सब ने concentration अच्छा किया और इधर उधर की आवाजें सुनी। पर पता है जब मैंने आंखें बंद करी मुझे क्या सुनाई दिया? मुझे मेरे अंदर की आवाज सुनाई थी कि चल यार अब ज्यादा मत बोल, पक रहे हैं बच्चे। वो थी मेरे अंदर की आवाज। So the point is कि हमें ये चूज करना है कि हम कौन सी आवाज सुन रहे हैं, और जो हमारे अंदर की आवाज है, मतलब माई ओपिनियन, ओके, द वॉइस इनसाइड मी। एज मीडिया स्टूडेंट्स हमारे को अपना ओपिनियन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, न्यूज़ वही न्यूज़ है सेम जो सबके पास है, राइट? हमको कुछ ना कुछ न्यूज़ से ही खेलना है अपनी जिंदगियों में, हम मीडिया स्टूडेंट्स हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ माई ओपिनियन और माई टेक ऑन इट और माई वॉइस। कुछ भी हो रहा है ज़िंदगी में उसमें मुझे क्या कहना है, क्योंकि न्यूज़ तो अवेलेबल है ना यार गूगल पे, वो तो सभी देख लेंगे। तो वो आवाज़, अपनी आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और मुझे लगता है कि इस इनर वॉइस को सुनने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? मिर्ची। अब हम मिर्ची से आए तो कुछ तो बताऊंगी ना मिर्ची वाला आपको। सो मिर्ची को मैंने थोड़ा इस तरीके से बनाया आपके लिए कि M stands for meditation। तो ये जो मैंने आपको भी 5 सेकंड के लिए आंखें बंद कराई, आई एम नॉट सेइंग कि बैठ जाओ ओम करते रहो, नॉट दैट मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब एक बार द वे यू वांट टू मेडिटेट, मे बी म्यूजिक इज योर मेडिटेशन, मे बी रीडिंग, मे बी व्हाटएवर, जिसमें आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हो, सोशल मीडिया, फोन, लोगों से दूर, उसमें आप क्या सुन पा रहे हो, क्या फील कर पा रहे हो। ओके, द सेकंड इज MIRCHI, आई मतलब इंटरेस्ट्स। तो आपके अंदर जो आपको, हर किसी के पास कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं, है ना? हमें पता होता है कि यार ये चीज़ करके मुझे वाकई अच्छा लगता है। तो वो जो आपका इंटरेस्ट है अंदर, जो आपके अंदर रहता है, उसको कभी मरने नहीं देना है, उसको हमेशा अलाइव रखना है, बिकॉज एज मीडिया पर्सन वो बहुत काम आने वाला है आपको, क्योंकि तब वहीं से आपका निकलेगा मैकेनिज्म दिमाग का सोचने का। R stands for being real। तो जब तक क्या होता है ना कि लाइक फॉर इंस्टाग्राम, हमको कितना मजा आता है ना ट्रेंडिंग ऑडियोज पे वीडियो बनाने में, क्यों? हम सब भेड़ हैं, बट मजा आता है। लेकिन आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी कोई ओरिजिनल कंटेंट आप देखते हो, आप लगता है ये क्या कर रहा है, ये इसने क्या ही बोल दिया। सो ऑलवेज बी रियल। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। आप अपने ख्वाबों से, अपने ख्वाहिशों से, अपने थॉट्स से जुड़े रहो, फिर ओरिजिनल और रियल रहने की कोशिश करो। देन C इज कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी आप तब समझोगे जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे काम करते हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे हर रोज कुछ करना है। सिड हर रोज 5 घंटे का शो करता है, हर रोज।
तो हर साल दिवाली आएगी, होली आएगी, फेस्टिवल्स आएंगे, डेज आएंगे, हाउ यूनिकली यू कैन डू इट, हाउ कंसिस्टेंटली यू कैन थिंक अबाउट डूइंग समथिंग फ्रेश एवरी सिंगल डे. हाँ, तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों में अपडेटेड रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट. सी के बाद आता है एच. इंसान होना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन, एम्पैथी. ओके, जब तक हम वो चीज़ फील नहीं करेंगे, हम अपने ओपिनियंस में लिख नहीं पाएंगे या बोल नहीं पाएंगे. सो इट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ ह्यूमन फ्रॉम इनसाइड. लास्ट होता है आई, मिर्ची का, और आई से मेरा मतलब है इंटरेस्टिंग. तो जो भी चीज़ आप कह रहे हो, ये नहीं है ना कि मेरे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है लेकिन वो इंटरेस्टिंग ही नहीं है. हाउ डू आई पुट देम आउट? फिर कौन सुनेगा या कौन पढ़ेगा मेरी लिखी हुई बात को या कही हुई बात को. सो वो इंटरेस्टिंग फैक्टर बनाना भी ज़रूरी है. अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला सेंस टच कर रहे हो किसी का. आप किसी को हंसा सकते हो, रुला सकते हो, कुछ भी सोचने पे मजबूर कर सकते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस तरीके से हम अपनी बात रख सकते हैं और उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि वो लोगों को रिलेटेबल लगे. कोई तो रिलेट करेगा मेरी बात को, तो उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी होता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैड टू से. काफी बोल कर दिया मैंने आपको. ओवर टू सिड. थैंक यू गाइस. मोनोलॉग्स जो होते हैं वो विशाल भारद्वाज की पिक्चरों में अच्छे लगते हैं, जैसे कि हैदर में दिया था शाहिद कपूर ने. आई डोंट नो आपको कितना मौका मिलेगा उन लोगों से बात करने में जो इंडस्ट्री में इतना काम कर चुके हैं, लाइक पारुल. कोई भी अगर सवाल, अगर कोई भी ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो, तो आई थिंक यू शुड जस्ट पुट इट आउट. पूछ लो. इनर वॉइस तो आ जाएगी जब आएगी. वॉइस आने दो. कुछ भी पूछना चाहते हो, एनीथिंग, कि यार कैसे करूं मैं, हाउ डू आई गो, हाउ डू आई अचीव दिस, हाउ डू आई डू दैट. क्या मैं सॉन्ग राइटर बन सकती हूँ, क्या मैं एक म्यूजिशियन अभी भी बन सकता हूँ, मैं क्या करूँ, व्हाट इज दैट रूट. क्योंकि हमने धक्के खा लिए हैं, आपका वक्त बच सकता है. और आप लोग यू गाइस आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, अभी बस अंकुरित हो रहे हैं आप. तो ये बहुत सही वक्त है कि माली आए हुए हैं, आज पानी डाल देंगे हम लोग. सो इफ यू हैव प्लीज एनी सवाल, जस्ट गो फॉर इट गाइस, प्लीज. या श्योर. हाँ, you are audible. Please go like this. Yeah. Okay. Yeah. I wanted to ask what makes you motivated to wake up every day and go do that work with the energy. Yeah. Should I answer this first? Please go. Yeah. If I generally tell you the passion in the heart lies. मुझे बहुत पसंद है एक कमरे में बैठ के पूरे शहर से बात करना. Although I am not the RJ, but through Sid, आप बिलीव नहीं करोगे कि जब सिर्फ कोई सवाल पूछ रहा है ऑन एयर रेडियो पे, तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि यार रेडियो कौन सुन रहा है आजकल, सब तो अपनी प्लेलिस्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम लाइक दैट फ्रॉम यू चिल्ड्रन. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब कोई एक सवाल पूछ रहा है एक इंसान स्टूडियो में बैठ के, और मैं देखे जा रही हूँ कि फोन लाइन्स खत्म ही नहीं हो रही है बजना, एंड समटाइम्स इट्स लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम कैसे उनको सबको फोन्स को अटेंड करें. वी ट्राई कि हम सारे फोन्स अटेंड करें, बट जब वो चीज़ आप कनेक्ट कर रहे हो ना पूरे शहर से, the passion makes me do it. कि मेरे को सुबह उठ के रोज आना है, because I have a family back there, I have a child and everything, but still I'm there in the studio, same with him. So like everybody, जो अंदर का passion है वो आपको ड्राइव करता है जो आप कर रहे हो. इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हम पसंद करें वो हम करें लाइफ में, जिससे हमको वो passion कभी ना मरे. पैशन ड्राइव करता है यार, लेकिन हमें तारीफ की भी जरूरत है ना. हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, नहीं आ रहे लाइक, बुरा लगेगा, है ना. हम नीचे वो क्लिक करते हैं जहाँ इंसानों के गोले में फोटो बनी होती है, और सारे ऐसे ऊपर आते हैं. दिल देखना सबको अच्छा लगता है. तो कभी कभी क्या होता है कि दिल मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं. रेडियो पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होती, बहुत वक्त लगता है. लेकिन जब होती है ना, इट गिव्स यू अ फीलिंग दैट वो बीच के सारे दिनों को प्लस कर देती है. अभी मैं बताता हूँ रिसेंटली क्या हुआ कि कोविड के दौरान मेरी नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों की गई, एंड फिर टचवुड मिर्ची में मुझे मौका मिला. 3 साल के बाद मैं वापस रेडियो पे लौटा, एंड मुझे शो करते हुए सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे. एक लिसनर का कॉल आया, अंशुल नाम है उसका. 2014 में 2014, 15, 16, 17, 18 मैं कॉन्टेस्ट खेलता था. हर फ्राइडे मूवी टिकट्स जितवाता था, एंड अंशुल यूज्ड टू बी सो मैड अबाउट सिनेमा कि वो यूज्ड टू मेक श्योर कि टिकट मैं जीतूं ही जीतूं. मैं उसको बोला, अंशुल तो फिर जीत गया यार. 10 साल के बाद उस लड़के ने मेरे को कॉल किया. ही जस्ट क्राइड. इट्स लाइक यार मेरे को लगा मैंने तुम्हें खो दिया यार रेडियो पे, तुम वापस तुम यहाँ आ गए हो, तो तुम्हें रोज सुन सकता हूँ. आई हैव नेवर सीन अंशुल, आई नेवर सी हिम, आई डोंट नो अंशुल, आई नेवर नो हिम,
but in 5-6 seconds he gave me goosebumps and I was like कि एक इंसान जो सिर्फ तुझे सुनता है वो रो दिया क्योंकि तू आज गुड मॉर्निंग बोल रहा है. व्हाट इज द लॉजिक? समझ रहे हो? तो ये चीज़ें अपने आप जगाएंगी आपको. तू फिर उठेगा सुबह, तो आज कुछ ऐसा बोलेगा कि 2034 में कोई आएगा बोलेगा उस दिन आपने एक बात बोली थी, मजा आ गया. जैसे कल की बात बताता हूँ. कल somebody DM'd me and please receive it. कल somebody DM'd me and said कि यार तुमने ना इलेक्शंस के दिनों में ना सोशल एनिमल वाली कोई बात बोली. हम बोल के ना मुझे 10 सेकंड में भूल जाता हूँ मैंने ऑन एयर क्या बोला. सुनते रहे मिर्ची थॉट एंड आई फॉरगेट इट. वी आर लाइव एंड आई जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज पीस और व्हाटएवर. एंड उसको पारुल ही रिमेंबर्ड that whatever my spoken word to the T, उसको पता थी यार वो exact बात. This is how seriously people are listening to you. So whether it's Instagram or radio, whenever you open your mouth and you're putting something out in the public domain, make sure it leaves an impact, because you don't know how it's going to come back, just like karma. And you know, make your life beautiful and the smile will last forever. That's what will wake me up every day at 6. कल रात को भाला मारा नीरज ने, सब जागे, हम तो पगलैट हैं. मैं 2 बजे सोया हूँ रात को, मेरा सर फट रहा है अभी, माइग्रेन हो रही है. आई हैव अ ट्रेन टू कैच एट 3. आई फिनिश माई शो इन जिफी एंड हम लोग दौड़ के आ गए सेशन अटेंड करने. बट अब नहीं हो रही सर मुझे मजा आ रहा है तुम लोगों को देख के. मुझे लग रहा है कि कितने सारे सपने जो हैं आई होप को पूरे हो जाएं. सो गिव इट अप फॉर योर टीम. आई रियली विश दैट एवरी वन ऑफ यू जस्ट do brilliant in life. Anything else? Please go for it. Anyone? Randomly यार कुछ भी पूछ लो. रेडियो रिलेटेड ना भी हो मेरे को चलेगा. Please. रोज नया कंटेंट कहाँ से आता है? अखबारों से तो नहीं मिलेगा. बैठो बैठो प्लीज बैठो. नाम क्या आपका? पलक. पलक. पलक झपकते ही ऑर्डर आते हैं घर पे. लेकिन कंटेंट जो है पलक वो तब आएगा जब तुम बाहर निकलोगे, अपने फोनों से बाहर निकलोगे, जब तुम बाहर जाओगे, जब तुम लोगों को नोटिस करोगे. हनी सिंह गाने पता कैसे लिखता है? वो रैंडमली ना ऐसे मास्क वास्क पहन के ना चिल करता है बच्चों के बीच में. वो चला जाता है ऐसी जगहों पे, वो बोलता है यूथ वर्ड्स क्या यूज कर रहा है. तो हो गया 40 का. कहाँ से ला रहा है वो ये सब कूल वर्ड्स? Blue eyes, if not eyes. Nobody's doing that in 38, right? But he does it. How coolly he does it? Because he goes out. वो absorb कर रहा है सारी चीजों को. कंटेंट आप एब्जॉर्ब करते हो एक स्पंज की तरह. हर जगह से आप सुनते हो लोगों को, सारा समझते हो. फिर जब आप बूंद निचोड़ते हो ना एक, वो बनता है आपका जॉब टॉप. फिर लोग बोलते हैं ये क्या ऑब्जर्वेशन है. कंटेंट इज ऑब्जर्वेशन. कंटेंट इज नॉट न्यूज पीस. समबडी इज रिटन एन आर्टिकल, दैट्स हर न्यूज पीस, दैट्स हर कंटेंट. तुम्हारा कंटेंट वो है जो तुमने चाय की दुकान पे सुना और फिर उसकी बात करी. लाइक कुछ दिन पहले सुबह सुबह चाय की दुकान एक खुलती है सिर्फ जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ 6:15 बजे. शंभू टी स्टॉल, फिल्म सिटी. तो वहाँ पर खड़ा हुआ था एंड टैक्सी वाले आए. मैं पारुल को बता रहा था, मैं ढूंढ रहा था, सवाल ढूंढ रहा था ट्विटर पे, ऐसे कुछ तो ढूंढ रहा था मैं. एक वीडियो चला एंड अचानक से मैं बोर होने लगा. सुबह सुबह फोन खोल दिया मैंने एंड द मोमेंट आई स्विच माई फोन ऑफ, ऑल द साउंड्स ऑफ द नेचर केम बैक एंड आई वाज लाइक व्हाट. मुझे पक्षी क्यों नहीं सुनाई दे रहे थे? सामने तो शोर हो रहा है, मैं सुन ही नहीं पा रहा था सबको, बिकॉज दैट स्क्रीन टुक अवे ऑल माई सेंसेस यार. एंड द मोमेंट द फोन वाज ऑफ नो, मेरे को समझ में आया कि सामने 2 कैबीज हैं, वो बात कर रहे हैं कि कल मैंने गाड़ी लगाई थी यहाँ पे और किसी ने शीशा तोड़ के कुछ निकाल लिया. तो मैंने बोला ये तो कंटेंट पीस है कंटेंट पीस. फिर सामने वाले ने बोला तू यहाँ की बात कर रहा है. मैं तेरे को बता रहा हूँ 2013 में अट्टा में गाड़ी खड़ी करता था, 5 मिनट की ज्यादा टायर गायब होते थे. ये भी कंटेंट पीस है. तो मैंने जाके बोल दिया रेडियो पे, तो बजने लगी फोन लाइंस. लोग मुझे ये बोलते थे कोई भी सवाल पूछता है 8:30 के बाद पूछा कर. मैं सुबह 7 बजे सवाल पूछता हूँ भाई, तेरा सवाल अच्छा होना चाहिए, जवाब आएंगे. एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू, दे आर वेटिंग फॉर अ वॉइस दैट दे कैन रेजोनेट विद. एंड द मोमेंट यू हिट द राइट नोट्स, जनता आपकी दीवानी है. मतलब anyone else, please go. Yeah. So it's not more of a question, rather it's a feeling, I should say. Like people know you and at the same time they don't. That's the best part. I mean, you can just be yourself in the public and be the complete opposite person. I mean, you can have 2 lives at the same time and you still have to figure. There is this thing now that there is this human inside you which you don't show to anyone
rather that person is however close to you. So you get to show that to people because they don't know you at the same time. So like how exciting is that? इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार. हाउएवर कुछ लोग बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी आवाज़ सुनते हैं, सिर्फ आवाज़ सुनते हैं. आज की डेट में वंस अपॉन अ टाइम ऐसा होता था. अब इंटरनेट ने ना आवाज़ें इतनी हमारे कानों में डाल दी हैं कि हम थोड़े से वैसे पागले हो गए. एक टाइम ऐसा था कि आरजे जो बोलते थे हमें पता होता था कि शहर के 20 आरजेज हैं, ये उनकी आवाज़ें हैं. अगर कोई जाके बाहर बुक शॉप पे भी बोल रहा था ये वाली किताब देना, तो लोग मुड़ के बोलते थे साइमा आप साइमा हो ना. तो ये दौर भी देखा है मैंने. अभी रिसेंटली मैं पहाड़गंज गया था. रिमेंबर दैट रिक्शा वाली स्टोरी. मैं पहाड़गंज पहुंच जाता हूँ. तो मैं गया और मैं पहाड़गंज जा रहा था. मैंने एक ई रिक्शा लिया. उसने बोला सवारी बिठा लूँ. पहले बिठा ले. क्यों बिठाऊंगा मैं सवारी? अकेला क्यों नहीं जाऊंगा? पहले बताओ. सवारी कंटेंट है. तो मैं उस रिक्शा में बैठा. मेरे साथ एक अंकल बैठ गए. ठीक है, सिद्धार्थ अंकल है वो. इज अ करोड़पति. उसके हाथ में 3 फोन थे. उसने 4 घड़ियां पहनी थी सोने की. I have his number. सोने की रोलेक्स की 4 घड़ियां. And he roams on the road, okay? And he's always singing. You will find him in Connaught Place, but you have to get out your phones first. आपको वो सीपी में बंदा मिलेगा and वो किसी की मुस्कुराहटों पे ओए नन्हे रोक आटो चढ़ गया होगा. चढ़ा मैंने इसको तो बिल्कुल चढ़ा. तो चढ़ा और वो बैठ गया and मैं उनसे बात करने लगा. मैंने अंकल जी तुसी की करते हो? अंकल जी बोलता मैं करोड़पति मैंने कख करने की जरूरत नहीं. मैंने बोला मैंने तुसी बड़ा सोहना गांदे हो. मैनू 1000 गाने आउंदे ने. 1000 गाने पैरा पैरा अंतरा मुखड़ा. तो मैं अंकल जी मौसम तो बड़ा अच्छा रहा, गाना गाते कोई बोले ये सफर है सुहाना. एंड ही इज अ सरदार, ओके, एंड ही सिंगिंग विद हिज पंजाबी एक्सेंट ऑल दीस सॉन्ग्स इज रिटन इन 70s ब्यूटीफुली. एंड दिस गाय मस्ट बी 78 एज लाइक अंकल जी की सोच के गा रहे हो? मेरी जड़ी वोटी है नहीं बड़ी सोहनी है. तो अंकल ये 4 घड़ियां क्यों हैं? बोलते 4 घड़ियां मैं इसलिए पहनता हूं कि मैं अपना वक्त बदल चुका हूं. मैंने अपना वक्त बदल दिया है और मैं इन 4 घड़ियों के ऊपर एक के ऊपर भी सही टाइम नहीं है. बोलता मैं सबके ऊपर अलग अलग टाइम नहीं. 4 घड़ियां लोगों के लिए दिखाने के लिए हैं कि मेरा टाइम बदल चुका है. सोने की घड़ियां हैं. तो बंदा ना बड़ी फ्लिप सी पर्सनैलिटी थी. वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज ऑस्टेंटेशियस, ही वॉज अ सिंगर बट ही वॉज ऑब्नॉक्शियस. तो मैंने उनका नंबर लिया और मैंने बोला मैं पॉडकास्ट करूंगा. बोलता तेरे करके बहुत आए मेरे को जी न्यूज आले नहीं थे आज तक आले. मेरी वोटी किसी ने इंटरव्यू नहीं देती. कंटेंट आपको वहां मिलेगा. वो बंदा रिक्शा से उतरा, नीचे उतरा रिक्शा से, एंड जो रिक्शा चला रहा था उसका नाम मोहित है. आई स्टिल हैव हिज नंबर. तो मोहित ने फोन करके बोला आप आरजे से हो? मैंने बोला हाँ. बोलता मैं आपको रोज सुनता हूँ. मैंने बोला आप तो कैसे सुनता है रेडियो पर? तो गाड़ी है नहीं तेरे पास? तो उसने छोटा फोन निकाला नोकिया का पुराने, पता है क्वालिटी वायर्ड वन. बोलता मैंने आज भी आपका शो सुना है सुबह, क्योंकि मैं दोपहर हो गया था वहां पे. सो ये सरप्राइज जब आपको मिलेंगे वो इतनी खूबसूरती से मिलेंगे कि आप बोलोगे यार थैंक गॉड कोई तो है जो आवाज से आप भी पहचान रहा है. बट ये देखो amalgamation of everything, content, you engaging with people. Some people don't know you like that Sadar, but the other one knows you. So it's a very beautiful medium. Rightly said. Yeah, I enjoy that. Love it. So I wanted to ask, so like you told us before. You have a beautiful voice. Let me cut you halfway. Go on. So like you told us before that you're a college dropout. So how did you So how did you figure out that engineering is not for you, and how did you like have the guts that I'm going to do something else? Guts. Totally different. Guts I had from the बचपन. तो मेरे पिताजी ने मेरा डर खत्म करने के लिए मुझे जिम्नास्टिक्स ज्वाइन करा दी जब मैं बहुत चिंदी सा था. ठीक है. और जिम्नास्टिक्स कैसी गेम है कि बेटा जब तुम दौड़ते हुए जा रहे हो ना कुछ करने के लिए, तुम मर सकते हो. तुम्हारी हड्डी टूट सकती है. तुम्हारी गर्दन के बल तुम्हारा समरसॉल्ट लैंड करेगा एंड दैट इज इट. यू एंड योर लाइफ देयर एंड देन. तो डर तो मेरा बचपन में निकल गया था. जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 5th सेमेस्टर की बात है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाते थे हमारे मैथ्स के सर, पटेल सर था उनका नाम. तो वो बहुत फनी तरीके से बात करते थे. मेरा ध्यान ही सब इन चीज़ों पर था यार. मैं ये देख रहा था कि बोल कैसे रहा है. तो ऐसे बोलते तो प्रॉब्लम को प्रॉम बोल देते हैं. मैं बोले मैं बच्चे बैठे हो गया अपने प्रॉम में, क्या प्रॉम. तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा था उस पर. एंड सडनली उन्होंने एक चीज़ ऐसी बोली कि मेरे अंदर कुछ ऐसे ठनका सा. मैंने बोला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यू नो, एक चीज़ के कितने जवाब हो सकते हैं. आई थिंक ऐसे ही होता है कुछ. अब तो वो ध्यान ही नहीं है.
कि कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक ही चीज़ को सॉल्व करने के। तो हमारी लाइफ को सॉल्व करने के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मुझे ये लगा कि अगर मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, कोई तो एक ऐसी जगह होगी जहाँ मैं बोर नहीं होऊंगा। तो यहाँ तो बोर हो रहा हूँ, तो ये तो ना है। हाँ क्या है वो देख लेंगे, बट ये ना है। तो कभी कभी हाँ जानने के लिए ना को एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो वहां मैंने ये एक्सेप्ट करा कि आई एम नॉट हियर, वेयर शुड आई बी, लेट लाइफ फिगर दैट आउट लेटर, बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। थैंकफुली माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव एंड दे डिडंट से एनीथिंग। बस उन्होंने ये बोला पैसे मत मांगिए उनसे। सो आई स्टार्टेड वर्किंग, which was also a great learning. But it all, God has a plan, yeah. God has a plan. And if you trust the plan, and if you do your bit, you'll make it. Thank you. Good morning, sir. My name is Sarthak Sikri. तो जैसा कि सार्थक सीजी, सार्थक सीकरी। अच्छा सीकरी, हाँ जी। So आपको तो पता ही है कि हम मीडिया में हैं इस वक्त, तो यहाँ पे ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। बट अगर आपको सोशलाइजिंग में प्रॉब्लम है तो क्या इससे आपके ऑडियंस को इफेक्ट होगा? यार मेरी रेडियो की ऑडियंस एक अलग जनता है, एंड सोशल मीडिया पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो बड़ी पर्सनल चॉइस होती है। जैसे अक्सर मेरा इसके साथ झगड़ा होता रहता है, मेरे बाल खींचती रहती है, थोड़े से रह गए, बोलती रहती है सोशल मीडिया पे डाल, इतना बढ़िया ये है, इतना बढ़िया वो है, डाल। Some people are made for it, some people are not. I feel that I'm a very studio person right now. Today I'm a very studio person. But when I went out and did my interviews with the Dakayats in Chambal, I realized that I love video podcasting as well. So I don't know, maybe it will come some, कहाँ manifest हो जाएगी वो चीज़ मुझे पता नहीं. But as of now, I feel कि हर बंदे की strength अलग होती है. मेरी strength है studio के अंदर when I am surrounded by people that I love, I'm doing something that I love, I'm emitting great energy on radio, and people who are sitting in the cars are receiving that and giving it back to me. तो अभी मेरे को ये exchange बड़ा प्यारा लग रहा है, and I think कि अगर कभी future में ऐसा कुछ हुआ तो मैं कर लूँ, मैं वो भी कर, I think ये मदद करेगी मेरी, मैं कर लूँगा. She has a great following on social media herself, and she does fabulous content. But that's just different people, different vibes, right? जैसे आप शायद Instagram बहुत कमाल का कर पाएं, but आप शायद रेडियो ना करें. जैसे मैं आपको बताता हूँ, before I went on air, I was the programming head for Mirchi, and me along with my bosses, we interviewed hundreds of people. और इतने सारे लोग, मतलब मिलियन की फॉलोइंग थी, बट जब वो माइक पे आके बोल रहे थे ना, their soul was missing यार, their heart was missing. ऐसा लगता था कि कैमरा ऑन करूँगा तो तब कुछ फाड़ू निकलेगा इसके अंदर से. तो वो हर बंदा हर चीज़ के लिए नहीं बना होता, is what I feel, and I think अगर कुछ होना ही है तो वो हो ही जाएगा. बाकी पारुल can please add. I like to add to your question यार. मेरे को लगता है कि जैसे अगर मैं रेडियो की बात करूँ, मीडिया तो बहुत बड़ा फैला हुआ है. अगर मैं रेडियो की बात करूँ, आपको पता है रेडियो में और आरजे के अलावा भी कितने सारे प्रोफाइल्स होते हैं. Do you guys know about it? Not really? Okay, let me just tell you. तो sorry? Sound engineering is one of the examples. तो जैसे कि आपने अगर सवाल पूछा कि आपको अगर सोशलाइज ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन आप मीडिया फील्ड में हो, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं दोस्त जो आप कर सकते हो कैमरा के पीछे रहकर भी या माइक के पीछे रहकर भी. तो रेडियो में अगर मैं बात करूँ, आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट देम. प्रोड्यूसर जो कि मैं हूँ, मुझे बोलना पसंद है वो अलग बात है, बट ज़रूरी नहीं है प्रोड्यूसर को बोलना. एक प्रोड्यूसर में ये काम होता है कि वो जहाँ जो कंटेंट उसको दिख रहा है वो लाकर इनको दे दे और फिर ये अपना मैजिक करें अपनी आवाज़ से या शब्दों से या जादू. उसके अलावा हमारे पास प्रोमो प्रोड्यूसर्स होते हैं, साउंड इंजीनियर्स होते हैं, कॉपी राइटर्स होते हैं. जो आप एड्स सुनते हैं रेडियो पे, जो सुन के आप चैनल बदलते हैं, क्या ऐड ही चलाते रहते हो, वही वाले एड्स, वो कोई लिख भी रहा है बैठ के, तो दो ज़्यादा कॉपी राइटर्स जो एड्स लिख रहे हैं. उसके अलावा हमारे पास प्रोग्रामिंग कंट्रोलर है, म्यूजिक मैनेजर्स हैं. तो इतने सारे प्रोफाइल्स आपको अभी और सीखने को मिलेंगे. यू जस्ट गेटिंग इंडक्टेड अभी, राइट, ओरिएंटेशन हो रहा है आपका. यू विल गेट टू नो कि इतने सारे प्रोफाइल्स हैं कि आप मीडिया में भी अगर आप शाय हैं या अगर आपको ज़्यादा सोशलाइजिंग या लोगों से मिलना या बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है किसी से, तो भी यू कैन सर्वाइव इन दिस फील्ड वेरी वेरी वेल, क्योंकि बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास करने की चीज़ें. हाँ, और इफेक्ट होगा इससे ऑडियंस की, वही मतलब अगर बिहाइंड द सीन्स भी इतना हम सोशलाइज नहीं करते, अगर उनको ऐसा लगे कि हम बिल्कुल रूड है तो यार देखो, ये तो हमारी जिम्मेदारी है एज मीडिया पर्सन्स कि हम रूड ना हो, है ना. इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि हम वी आर द स्पोक्स पर्सन, बेसिकली हम आईना है समाज का. कहते हैं ना कि मीडिया आईना होता है, तो हमें रूड तो नहीं होना चाहिए. वो तो मैंने आपको पहले भी बोला था, सिद्धि भी बोला था कि बीइंग ह्यूमन, एम्पैथाइजिंग विद पीपल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. क्योंकि न्यूज़ फिर बहुत कमर्शलाइज हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है.
लेकिन वो अंदर से सोल नहीं मिस होना चाहिए, तो वो तो एक ज़रूरी चीज़ है. एज ह्यूमंस, एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो, अगर आप कहीं कुछ भी कर रहे हैं तो रूड तो ना ही हो, जब तक सामने वाला कुछ रूड ना हो रहा तब तक तो ना ही हो. और उसके अलावा सॉरी आई मिस्ड द सेंटेंस यू सेड. कि रूड होने रूड वाला तो बोल दिया मैंने, और क्या और तो नहीं, रूड बस ऐसे मुस्कुराते रहो यार, तुम ऐसे मुस्कुराते रहो, मुस्कुराओगे exactly. जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारी. अच्छा, आई थिंक आप ये कहना चाह रहे थे कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप रूड तो नहीं हो क्योंकि आप सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे. ओके, सो फॉर दैट कि अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो और सामने वाले को हर्ट नहीं कर रहे हो किसी भी टर्म्स में, तो वो समझ जाएगा कि ठीक है यार, मे बी ही डजंट टॉक मच बट ही इज डूइंग हिज वर्क, सो दैट वर्क्स. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. I have a question. As you said that you had a long journey and like throughout where you actually like reached towards your calling end में, तो आप motivated कैसे रहे आपकी journey के throughout, और how would you find your calling, and like until you find your calling, how would you not be demotivated? Don't grow up. No, trust me. Actually, Don't grow up. You know what I mean by don't grow up? don't let your inner child die. Yeah, X. Don't grow up. Rightly said. अगर आप innocent हो, तो आप क्या हो? आप बच्चे हो. बच्चे का ध्यान कौन रखता है? माँ रखती है. माँ बैठी हो, रख लेगी. वो सारी दुनिया चला रही है. चिड़िया को पता है कौन सा बीज खाना है, कौन सा नहीं. Everything is working beautifully. There is a chaos, but there is an order. And once you understand the order, you will know that you have your place in this world. That is why you're here. एक बहुत बड़ी मशीनरी का छोटा सा नट ही हैं हम, लेकिन अगर हम निकल गए तो मशीनरी चरमरा जाएगी. ये सोच के रखो, सब बढ़िया से होगा. इंजॉय करती रहो लाइफ को, मुस्कुराती रहो. ये मत सोचो कि आज एक डिजेक्शन हुई है तो हाय मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई. वो पार्ट है, वो लर्निंग है. 20 चैप्टर हैं आपकी जिंदगी की किताब में. ये वाला चैप्टर है, उसकी यही स्टोरी है कि तेरा दिल टूटना है, उसके बाद ही खड़े होंगे. जब ट्रफ आता है तभी तो आता है ना क्रेस्ट. एब्सोल्युटली. सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स अ पाथ, इट्स अ जर्नी. एंड में क्या होता है, हम थिएटर से निकलते हैं ना, बस जब अपनी फिल्म खत्म होगी तो सब लोग बोलेंगे क्या लाइफ जी है इसने. बस पर वो Believe in calling this. hit कैसे होती है कि पता कैसे चलेगा? तो बताओ, ये अपने आप को दो ना, दिमाग को धोखा दो अपने आप को कि ये एवरीथिंग इज अ लर्निंग. जस्ट स्माइल, जस्ट मूव ऑन. चिन टपाक डम डम क्या मतलब है? सब हंस रहे हैं. मतलब क्या है इसका चिन टपाक डम डम का? बताओ ऑनेस्टली दिस इज द क्वेश्चन. क्या मतलब है? क्या मतलब है चिन टपाक डम डम? मीम तो शेयर कर लिया. जाने दो, लेट इट गो. बीटल्स ने गाना भी गाया, लेकिन हमें चिन टपाक डम डम बढ़िया लगता है. So chin tapak dum dum. All is well. Anyone? Anything? Go for it. Good morning. I just wanted to know that considering social media में जो है काफी ज़्यादा we see, we get attracted or we are inspired of what we see or what is visual. Specifically people like us today, and considering कि बहुत ज़्यादा highlight किया जाता है news को और किसी भी चीज़. So as a radio journalist or as a radio person, how would you ensure that you are as a first timer, as a newbie being visible on through your work? So rightly said. तो मेरा एक बंदा ना इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने बोला यार तेरे को सुना है मैंने रेडियो पे, बहुत बढ़िया करता है तू, बट ना यार सोशल मीडिया पे यार तेरे 700 फॉलोअर हैं यार, सिर्फ 700. मैंने बोला 700 हो गए मेरे? तो चेक करो, टाइम हो गया था जेन्युइनली. तो बोलता कि हाँ यार मतलब 10-20 हज़ार तो हों. तो मैंने बोला अगर मेरे 10-20 हज़ार होंगे तो मैं कहीं और काम कर लूँगा, मैं तेरे पास क्यों आऊँगा, मैं रेडियो क्यों करूँ? दैट इज सोशल मीडिया. एंड ही वॉज अ वेरी बिग एस गाय वर्किंग इन फॉर अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. आई टोल्ड हिम कि यार that's radio, it's a different medium. It's social media, that's a different medium. Both should be treated differently. You should not piggyback on each other. हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है, रेवेन्यू में सपोर्ट होता है, लेकिन टैलेंट्स दोनों के डिफरेंट हैं.
आज की डेट में जो बंदा इंस्टाग्राम पे कर रहा है, सेम थिंग विल नॉट वर्क ऑन रेडियो. वी हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स. It doesn't. Radio work is a different beast altogether. Once you start doing radio, you can't do memes. You can't do. You have to be a human being. You have to touch my heart. To get just one call, no. To get one call is so hard. And I really wish कि आप jobs बनाएं. आप में से कुछ लोग रेडियो जॉकी बने. ये लोग बोल रहे थे कि अभी यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो शुरू हो जाएगा. I really wish कि हो जाए. वहाँ पे फोन लगेगा. आप बैठो. आप अपनी बात को फेंको. 10 किलोमीटर का रेडियस है. आप चेक करो कौन लोग सुन के आपको कॉल करते हैं. आपने क्या बोला ऐसा जो लोगों ने कॉल किया. It won't be something that you heard from Instagram. It will be something that came from your heart. That's how दिल से दिल जुड़ता है. वो सुनेगा तभी कॉल करेगा. Both are very different. So if you want to go there, अलग तैयारी. रेडियो अलग तैयारी. अब बताओ जी. है कुछ? Yes, you. Like you told us that you don't drop out and. अरे यार यार. And when you started with the radio. पढ़ा लिखा हूँ मैं वैसे बहुत पढ़ता हूँ मैं. Drop out तो भी हो. चल आजा. Next. So what would you? She's audible. She's audible. Please go on. Yeah. So what would you tell? What were the changes you felt when your life change started as a radio jockey, and like now we might be, you don't know who becomes a radio jockey here. Absolutely. So what do you think that something that important for them that they must have? Okay. Stop consuming content. This I tell to a lot of people. एक मेरा फ्रेंड है, वो कॉमेडियन बनना चाहता है, पर वो सारा दिन कॉमिक्स के वीडियोस देखता रहता है. और मैं उसको बोलता हूँ कि जब तू ओपन माइक करेगा मेरे भाई, तो तू किसी का जोक क्रैक कर देगा और तुझे पता भी नहीं होगा. आप कौन हो ये जानने के लिए आपको अपने साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है. और जब हम ये कंजम्पशन छोड़ देंगे ना, स्क्रीन पे चीज़ें, नेटफ्लिक्स. मैंने किताबें पढ़ना छोड़ दी. मैं अभी कल बात कर रहे थे लोग, मैंने श्रीलाल शुक्ल की राजदरबारी पढ़ी और मैंने नोटिस किया कि जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के स्टाइल में शुक्ला साहब घुस रहे हैं. तो मैंने बोला यार निकालो इनको बाहर. कैसे निकालूं बाहर? कंजम्पशन छोड़ दो बिल्कुल. जब आप कंजम्पशन छोड़ देंगे आप ओरिजिनल हो जाएंगे, आप रियल हो जाएंगे. मिर्ची के आर में रियल था ना, दैट रियल. वो रियलिटी तब आपके अंदर से निकलेगी. दैट इज ओरिजिनल कंटेंट. दैट व्हाट्स योर नेम? परीक्षा. तब तुम परीक्षा बनोगी. वरना परीक्षा बनोगी तुम सलमान रश्दी पढ़ लिया, आयन रैंड पढ़ ली तुमने रिचर्ड बाग पढ़ लिया, फिर ये सब आएंगे तुम्हारे दिमाग. प्रेमचंद साहब पढ़ लिए, ये सब आएगा. वो कहीं ना कहीं झलक जाएगा, किसी ना किसी थॉट में वो घुसेगा अंदर. सबकॉन्शियस हमारा इतना स्ट्रांग होता है, हम ना चाहें ना तब भी वो पढ़ रहा है पीछे से. अभी दिमाग मेरा कुछ और रीड कर रहा होगा सबकॉन्शियस. पर सिर्फ आप यूनिवर्सिटी में बैठ के बच्चों को बोल रहे हैं कि आपको पढ़ना नहीं है, टीचर्स मारेंगे आपको. पढ़ना है उनको. बात अलग कमरे पे ले जाके आराम से, सबके सामने नहीं. बट या आप पढ़िए, लेकिन कंटेंट ऐसा वाला कंज्यूम नहीं करिए. ये तो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली समझाएंगे, कंसोल कैसे हैंडल करना है, माइक से कितना दूर रहना है, नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या करो. ये सारी चीज़ों का ज्ञान लो. ये लोग दिग्गज लोग हैं, इनसे सीखो. आओ इंटर्नशिप करो. पारुल महेश्वरी जी से आप लिखना सीखो, गाना सीखो, कमाल करना सीखो, मैडनेस देखो. बासिम पीछे बैठा हुआ है, तूने देखा है मिर्ची में. Basim has interned with us very recently. And give it up for his editing skills. Basim खड़े रहो, शक्ल की हालत में दोस्तों. तो बासिम ने वो देखा internship. अच्छा cool. तो इस लड़के ने देखा कि हमारा काम क्या है. हमारा काम मस्ती है, राइट. और मस्ती करना है. और मस्ती करो, इतनी करो कि वो जब बाहर जाए माइक पे लोगों तक पहुंचे तो उनको लगे कि यार मस्ती के पैसे हैं. यही काम है. आपके मस्ती में वो भी हंसेंगे. Stop consumption. That's how you dig the real you. Anyone, please. What's the time also? Can somebody please tell me? 11:30. 11:30. We'll do a quick exercise with you. क्या? भीड़ से अगर हटके कोई काम करते हैं तो लोग जज करते ही हैं. बहुत बढ़िया. तो फिर उससे कैसे डील करना है? नहीं करना है. नहीं करना है. Don't deal with people. आपने अगर ये देख लिया कि भीड़ यहाँ जा रही है, अब अलग हो जाओ. अभी सुबह हम बात क्या कर रहे थे यार, क्या कनेक्शन हो रहा है? Exactly. I was just about to say that. Birds. आपने वो पक्षी देखे हैं, पैटर्न उड़ रहे होते हैं. बहुत खूबसूरत पैटर्न बन रहे हैं, उड़ रहे हैं, सारे उड़ रहे हैं. किसी ने सिखाया नहीं उनको, तब भी उड़ रहे हैं. एक कांडी पक्षी होता है बीच में, तो बोलता मैं ना होगा, वो यूं पड़ जाता है, उड़ जाता है. बाकी सारे वाले पक्षी देखते हैं इसको, बड़ी चूल्हे कहाँ जा रहा है, वो सारे उनके पीछे जाते हैं, नया पैटर्न बनता है. तो कौन से पक्षी हुआ? अलग. तो मतलब लोगों को बोलने देते.
काट दो एक्स को। वो तो काटते हैं। अच्छा, आप लोग पढ़ाई करके आप कंपनीज में जाएंगे, एचआर मिलेगा, एचआर बोलेगा सीटीसी क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी होती है, ठीक है। सीटीसी पे बात अटकती है कितने पैसे कमाते हो आप। लेकिन आज जो टॉपिक चल रहा है हमारा, क्या हो रहा है, मैं क्यों आ गया, ये टॉपिक चल रहा है इनर वॉइस। अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए भी मंत्रा सीटीसी है, कट द क्रैप। Anything else, or should we just do a quick exercise? Yeah, go please. Yeah, so I was just wondering, how do you so confidently put your content out there? I don't know. Because आप पूरे शहर से connect करते हो, and there are like middle-aged people, old people, and the young kids. So how do you do that? How do you make it possible? Can I answer this? Please go. I'll begin to answer. आपको पता है तो this is a very cool and interesting thing about RJ Sid. सुबह 7 बजे से शो शुरू होता है और सुबह एक ऐसा सवाल पूछते हैं, ये एक पहेली कहीं से विचित्र सी लेकर आते हैं। तो जितने भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठ के, यू वोंट बिलीव अ लॉट ऑफ किड्स कॉल अस। और इससे पहले हमारे कंपनी, हमारे बॉसेस हमको बोलते थे कि यार कौन सी एज, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई आवर टीजी ना, हमें कौन सुन रहा है। तो तब तक ये था कि अच्छा 30, 32, 35 ये लोग सुन रहे हैं। बट जो हम सवाल पूछ रहे हैं, कितने बजे पूछ रहे हैं, वी हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस। हाँ, तो हमें पता है कि 7 से 8 के बीच बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सो ही आस्क ऐसे रिडल्स, बच्चे फोन करके बताते हैं, आंसर्स दे रहे हैं। वो स्कूल के ऐसे गेट पे खड़े हुए हैं कि पापा रुक जाओ अभी सिट डाउन कर, पूछेंगे सवाल, उनका जवाब देंगे, हम फिर जाएंगे अंदर स्कूल के। सो वी गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम किड्स फ्रॉम देयर। उसके अलावा फिर हमको पता है कि अच्छा 8 से 9, 9 से 10 वाले आगों में अब लोग ऑफिस जाना शुरू हो गए हैं, तो हम किस तरीके के सवाल पूछेंगे कि सो वी हैव टू डू अ लिटिल, जैसे कि मैंने कहा कॉमन सेंस। सुबह जब एक इंसान मे बी 30 and 30+ एज ग्रुप का अपने ऑफिस जा रहा है, उसको ऑलरेडी अपने दिमाग में टेंशन है, तो उसको बहुत ऐसे अजीब आप उसमें जोन में नहीं डाल सकते हो। सो यू जस्ट आस्क सर्टेन थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन, जो न्यूज से रिलेटेबल हैं या उसकी जिंदगी से रिलेटेबल हैं। अगर आप वैसे सवाल पूछोगे तो वो डेफिनेटली बोलना चाहेंगे या रैंट करना चाहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इरिटेटेड है। आप कुछ कॉर्पोरेट की बात कर दो, ऑफिस की बात कर दो, कुछ मीनाक्षी मैम मुझे कह रही थी कि पैरोडी जरूर सुनाना, मैं बड़े ऑफिस की कॉर्पोरेट की पैरोडीज करती हूँ। तो कुछ ऐसी आप बात करते हो तो दे आंसर। तो ये अलग अलग वक्त पे, रेडियो में स्पेशली ऐसा होता है, अलग अलग वक्त पे हमें बस ये सोचना होता है कि अभी कौन से माइंडसेट में इंसान हमें सुन रहा है। सो उस वक्त उस तरीके के और बहुत वैरायटी ऑफ लिसनर्स कॉल, सिट एंड आंसर। एक सवाल पूछूं आप सबसे, जिसने रिडल बोल दिया, आई कांट स्टॉप माय सेल्फ। एक इंसान है, उसके कपड़ों की जो पॉकेट है, वो ऑरेंज कलर की है, उसका नाम क्या है? बताओ। ऐसे सवाल पूछता हूँ मैं। स्कूल के बच्चे आंसर करते हैं फोन करके, गाइस आंसर करते हैं स्कूल के बच्चे, पागल हो रहे होते हैं वो। ये सवाल होते हैं हमारे। एक आदमी है जिसके कपड़ों की पॉकेट जो है वो ऑरेंज है, और उस आदमी का नाम क्या है? नो वन? ऑरेंज जेब। सो ये चलता है, ठीक है। तो बच्चे, माँ बाप, वर्ड प्ले, सब बैठे होते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट फन थिंग दैट वी डू। ऑलराइट यार, कल को तुम सब लोग ब्रांड बनोगे, राइट? कल को तुम में से बहुत सारे लोग जो हैं, यू विल रीच योर इनरमोस्ट कोर एंड फाइंड योरसेल्फ एंड बिकम अ ब्रांड। दैट्स व्हाट आई होप। कल 8 तक इसने मैनिफेस्ट किए, सबने किया होगा, सब इंस्टाग्रामर हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड कल को तुम लोग ब्रांड बनोगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ मैं आप सब लोगों के साथ, ताकि ये हम लोग भी देख पाएं और आप लोग भी समझ पाएं कि आप लोगों को ये पता है कि ब्रांड्स होते क्या हैं। Are you ready to do this? Cool. Please go on quickly. Last one. I don't want to ask any question. Just wanted to express and appreciate you guys. 1.5 साल पहले, if you remember, I'm a little emotional because. Arun, go give it a hug. What happened, baby? You want water? Hugs. They work better. I'll express. I'm good at that. Go.
you do. So, want to be there. आजा। एक साल पहले I decided to do that. Each session कुछ connect नहीं मिल रहा. Rat race में I'm feeling lost. So that time I decided that जब गई थी studio I met you, and since then I'm following her. I follow your content, but I don't follow you. I follow her. Dead on social media. Yeah. Follow me. I follow your content, but I was telling my friend right now that as the moment she came in, I was like, yeah, I know her, I follow her, I watch her every day, and wanted to say that उस moment में, but वो पता नहीं like अभी आप लोग ने बोला, so that connect came back. I'm not this person, I don't cry when I'm expressing, but just realized कि वो in between 1.5 साल में चला गया था, and मतलब ये बोलने में मुझे डर लग रहा है, so stupid. But I used to be this, what you are doing. So when I'm with my people, I do that. But I really wanted to do what you do. मुझे बहुत अच्छे से आता है what you guys are doing. Can you join our show Monday onwards? सोचा नहीं उस टाइम से दिमाग हो गया था कि आजा बस, आजा। That's not for मैं me. रो दूं? बट पता नहीं अभी कुछ बोला, क्लिक हुआ, ऐसा लगा पूरा मैनिफेस्टेशन वापस आजा मंडे आजा। Maybe you guys came in. Yeah. It's for me to remind that Guru shall go and do it again. नहीं समझ आ रहा कुछ भी PR मेरे को आ गया। Yeah. आ जाओ मंडे। Yeah. I'm so Next sorry नहीं that आएगा। आप सॉरी बोल रहे हो, आपने क्राई किया, मैं बोल रही हूँ थैंक यू क्राई, बिकॉज आपने होल्ड कर रखा था एंड यू लेट इट गो टुडे. थैंक्स. ये देखो इनर वॉइस यही होती है दोस्तों. ये मिर्ची पारुल ने समझाया ना, मिर्ची का आर इज रियल, शी इज बीन रियल, गिव इट अप फॉर हर. मेरे को मेरी नई इंटर्न का नाम नहीं पता है अभी तक. गुरुशा. वाह, तुम्हारे नाम में गुरु है, कितना कुछ सीखने को मिलेगा. प्लीज आना. वो आपने जब 5 सेकंड का बोला था तभी रियलाइज हो गया था, वो डर पता नहीं क्यों. निकाल लेंगे. हाँ, हो जाएगा. निकल गया, ये कर दिया तुमने. आधे लोग तो I know what I have to do now. एब्सोल्युटली बेस्ट ऑफ लक यार. मैंने जैसे लास्ट थिंग जब डीन्स पहले डीन थे तो उनके सामने भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था दैट मे बी आई गेट Gauri ma'am knows that I'll get less money but I'll sleep with satisfaction because I'm doing the right thing. What I want to do. पैसे कमाने हैं. Wherever the cookie crumbles. Okay, so we are really short on time and I really want to do this. To understand and to see how beautifully you understand any brands. Have you guys ever seen advertisements? There must be few ads that you love, few ads that you like. I'm giving you 10 minutes to recreate one ad. These 3 lines together, these 3 lines together. इन 3 लाइनों के पीछे वाला पूरा गैंग जो है ना, अब सारे एक तरफ एक गोला बना लो. जाओ पीछे जाओ, एक गोला बना लो, जैम करो. तुम्हें यहाँ पे एक एड प्रेजेंट करनी है. Quickly. 10 मिनट के अंदर एक एड प्रेजेंट करनी है. इट कैन बी एनी एड, एनी ब्रांड. Just think randomly, quickly. You can create on your own. Just baffle our minds, okay? It has to be an advertisement of a product. Come on, turn your heads. Come on, start jamming. Come on. 10 minutes only. 2, 1, action. मम्मा वो टी-शर्ट का दाग नहीं जा रहा खेलते हुए. तू हुस्न परी, तू जाने जहां, तू सबसे हंसी, तू सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा, सबकी भाई तुम क्या कर रहे हो? शॉर्ट एक्सेल की आईसी की ब्रांड है. पैसे चले जाएंगे, ऐसे काम नहीं होगा. दाम तो जा ही नहीं रहा. कोई बात नहीं, दाम अच्छे सोचते हैं. Great guys, next group please. Next group, come on.
बहुत सही, बहुत सही। Begin. खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Do we have the next group? पैसे पैसे Quickly, quickly, quickly. बैंक की आदमी Guys, ready? गाइस Hello, hello. स्टार्ट। Action. दो सिगरेट के पैसे से तुम भाभी को बीमारी से बचा सकते हो तो अरे अच्छा आप सोच रहा था स्टार्ट अगेन, एक्शन। What are you doing? Okay. Well, you can prevent your wife from the worst disease during periods. That is, like, that she uses for. क्या कर रही है? और अंदर यहाँ हॉस्पिटल के बाहर क्यों? वही मेरी बीवी अंदर है, वही लड़के वो लेडीज वाली बीमारी। अच्छा, मतलब भाभी अंदर है और तू बाहर फूक रही है? फूक रहा है? चल रहा है आजकल, ये भी हो रहा है। अलाउड है, अलाउड हो गया। हाँ मतलब बस फूक ही तो रहा हूँ, इसमें क्या है? और ये सिगरेट कितने की है? 10 रुपए। तेरे पास ये सिगरेट खरीदने के पैसे हैं, लेकिन अपनी बीवी को महामारी जैसी बीमारी से बचाने के लिए पैसे नहीं है। हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, ये पैड लेने में है। वेरी गुड, शाबाश। Do we have the next batch? Do we have the next batch? Or Are you're we done? We done? ले ले। आते हैं, दोबारा आते हैं। एंड अभी डीन सर ने बोला है कि वो आप सब बच्चों को लेके बहुत जल्द मिर्ची स्टूडियो आएंगे। तो हम लोग रियल अड्डे में जाके चिल करेंगे, ठीक है? ये तो कॉलेज है, रिस्ट्रिक्शन। पर आप स्टूडियो में आओगे, फुल धमाल करेंगे हम लोग, गाने में नाचेंगे वाचेंगे, ऑन एयर जाएंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है? एंड sing. Oh, get ready for this, guys. Parul is the official parody writer for Mirchi. She writes some amazing parodies. And एक parody अभी हम सब सुनेंगे, पारुल के चमचे। चमचा कौन है यहाँ पे? तुम्हें बुरे लगेगी parody? So Meenakshi ma'am has really requested me to sing this. वैसे already मैं आपको बता देती हूँ, सिड बता चुका है, मिर्ची सिड, he is Instagram पे, तो please follow him and DM him. अगर आपको कभी भी कोई internship वगैरह का बात करना है, just text him. And I'm there paruls.world के नाम से Instagram पे, so you can also text me अगर internship चाहिए.
और अभी मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ बिना म्यूजिक के एक पैरोडी. सो आई जस्ट राइट सम ऐसी रैंडम स्टफ. आई स्टार्टेड राइटिंग कॉर्पोरेट का परिंदा था जो मैंने सबसे पहले लिखा था और लास्ट ईयर यहाँ पे सुनाया था सबको. सो दिस टाइम आई एम जस्ट आउट हियर. हर जगह कॉर्पोरेट्स में और कॉलेजेस में और सब जगह चमचे होते हैं. यू नो व्हाट चमचा इज? क्या होता है? Okay, so you all have to give me थोड़ा ताली, okay? क्योंकि म्यूजिक नहीं है, so मुझे बीट चाहिए साथ, ठीक है? Let's begin. और उसमें आके कोई काम न करके बस सब पे नजर रखता है जी. गॉसिप बता के इसकी स्किल लगा के बस बॉस के कान भरता है जी. जो घर खोल कर पढ़कर इतना बॉस का सगा इसे कुछ भी न कहना. कह दिया तो फिर बच के रहना. ये चमचा बना दे. What चमचा? What चमचा? What चमचा? चमचा? What चमचा? चमचा बना दे. कॉर्पोरेट के बाजार में चमचा बना दे. That's it. Thank you. Thanks. Thank you guys. We take your leave. Thank you so much. लास्ट में एक साथ हम सब मिलके बोलेंगे रेडियो मिर्ची इज हॉट. रेडियो मिर्ची इज हॉट. और जब भी आपको मौका मिले 7 से 12 प्लीज ट्यून इन टू 98.3 मिर्ची एंड लिसन टू आरजे सिप. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Thank you guys.